Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is going to be this very important topic, which relates to the loss of unpaid seller. So, as it must be very clear from these two words, unpaid and seller. In most of the businesses, people sell and buy things, but it's not that every time the payment is made at the time of the sale. So most of the times the business dealings are done on credit basis, and most of the times sellers are not paid at the time of the contract. So what we are going to discuss here is that what if the seller is not paid? If what if the seller is an unpaid seller, that the price of the goods have not been paid to the seller? Now in that case, we are going to first define and understand what is an unpaid seller. What are the situations in which we can call a seller an unpaid seller? And then we are going to look at the different rights of the unpaid seller towards the goods, that what the unpaid seller can do with the goods. For example, can he keep the possession of those things? Can he resell those things? And then we are going to talk about that what if the seller is not paid and the goods are in transit, which means that the goods are moving from the seller to the buyer from one place to the other place. Then what is the situation that unpaid seller will have to face? Can he or can he not stop the goods during transit? And what he can do, what he cannot do. So our topic is going to be about the laws related to unpaid seller. So first of all, we need to understand, for which we'll have to define what is an unpaid seller. So an unpaid seller means a person who sells good for a price, which means it is not a barter system. He has sold those goods for some price, for some money, but the price has not been paid to him. It is not that simple. The the further definitions are going to explain it in a little bit more detail. But the main idea is that if goods are sold on price basis or cash basis and the cash is not paid fully or partially, then the seller will become an unpaid seller. Now, we'll understand it in a little bit more detail with some more definitions in this slide and in the next slide. The seller is not an unpaid seller if buyer has offered the price, if buyer has offered to pay the price and seller refuses to accept it. For example, आप किसी रिटेल स्टोर पे जाते हो, आप उससे कोई बाइंग सेलिंग आपकी होती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, यू ऑफर द मनी टू दैट सेलर और वो आपसे नहीं लेता पैसे, तो इस केस में वो अनपेड सेलर नहीं है। ऑल्दो वो आपने पेमेंट नहीं उसको की, बट आपका ऑफर कर देना और उसका उसको रिफ्यूज करना जो है वो उसको अनपेड सेलर नहीं बनाएगा। सो अगर आपने ऑफर नहीं की अभी तक उसको पैसे और उसको पैसे नहीं मिले डिसाइडेड टाइम पे, तो तब वो अनपेड सेलर है। हम इसको फर्दर थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशंस में इसके फीचर्स के साथ देखते हैं। सो नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इट इज simple, at the same time a little bit complicated to understand. Now, following are the features of unpaid seller. First, seller must sell the goods on cash basis and must be unpaid. इसका मतलब ये है कि सेलर ने कोई क्रेडिट टर्म नहीं की
इमीडिएट एक्सचेंज पे बात की है कि आप अभी गुड्स मेरे से खरीद लो और आप मुझे फौरन पूरे पैसे पे कर दो। अगर इस तरह का आपका टर्म्स एंड कंडीशंस थी कॉन्ट्रैक्ट में और आपको अभी पैसे नहीं मिले, इवन इफ इट इज़ 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, 30 सेकंड्स और 30 मिनट्स, तो आप अनपेड सेलर ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रिटेल स्टोर पे जाते हो और आपसे कुछ चीज़ें खरीदता है, उसने ऑफ़र की कि उसने शेल्फ़ से चीज़ें उठाई और आपको कहा वो खरीदना चाहता है, आपने कहा जी ठीक है, आपने बिल बना के उसको दिया, वो कहता है सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एटीएम से पैसे लेके आता हूँ। तो इस केस में वो अनपेड सेलर है। जो सेलर है, वो अनपेड सेलर है बिकॉज़ उसने तो जो अज़्यूम किया था, वो यही किया था कि आप फ़ौरन उसको पैसे दे देंगे या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या जैसे भी आप उसको पैसे दे देंगे। नाउ मस्ट बी अनपेड ईदर होलली और पार्टली। इसका क्या मतलब है कि आप रिटेल स्टोर पे गए, आपने कुछ चीज़ें खरीदी और आपका जो बिल बना वो ₹3000 का बना। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने उसको ₹3000 ही अभी पे नहीं किया, ऑल्दो आपने रिसीट वगैरह कटवा ली है, आपने समझ लें कि एक किस्म की चीज़ें खरीद ली हुई हैं, बट अभी आपने उसको 3000 का ₹3000 पे नहीं किया, वो जो सेलर है वो अनपेड सेलर है। डील हो चुकी है, बट आपकी तरफ से उसको पैसे नहीं मिले। असम्पशन ये थी कि आप फौरन पैसे उसको देंगे। ये तो है कि होल पेमेंट नहीं हुई, कंप्लीट पेमेंट नहीं हुई। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वॉलेट में अपने देखने लगे और उसको पता चले ₹2000 उसके पास है और ₹1000 जो है दैट इज़ मिसिंग। सो वो कहता है कि ये ₹2000 आप रख लें, मैं ₹1000 अभी लेके आया और अभी आपको ₹1000 देता हूँ। इस केस में भी जो सेलर है वो अनपेड सेलर ही है, बिकॉज़ उसको पार्टली अभी पार्शियली पेमेंट नहीं हुई हुई। देन the third feature is the decided period has expired and the price has not been paid to him, not paid to the seller. अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि 15th में को आपको पैसे मिल जाएंगे विच एवर ईयर भी इसको साथ लगा लें। आपने कहा 15th मई को 12 ओ क्लॉक तक आपको पैसे मिल जाएंगे, आपने सेलर के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया एंड आज जिस दिन आपकी डील हो रही है उस दिन 10th मई है। तो 10th मई को आपने सेलर के साथ ये प्रॉमिस किया कि आप उसको 15th मई को पैसे दे देंगे, चाहे आप चीज़ें अपनी ले गए हैं, गुड्स आपके पास हैं या उसके पास हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उनका क्या सिचुएशन होती है। बट अगर आपने उसके साथ डिसाइड किया कि 15 तारीख को आप उसको पैसे देंगे और उसने एग्री कर लिया कि हाँ 15 तारीख को आप मुझे पैसे दे देना, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट प्राइस की पेमेंट जो है वो आफ्टर 5 डेज होगी फ्रॉम द डील। डील आपकी 10th को हुई और 15th को आपने उसको पैसे देने हैं। अब ये पीरियड है फ्रॉम द 10th में टू द 15th में, इसमें वो जो सेलर है वो अनपेड नहीं होगा। इसमें सेलर अनपेड नहीं होगा। हाँ, अगर 15th मई को 12 ओ क्लॉक तक आपने उसको टाइम लिया था, 12 ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून, अब 15th में 12 ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून तक जो सेलर है वो अनपेड सेलर नहीं है। बट अगर 15th में 12 ओ क्लॉक तक उसको पैसे नहीं मिले और आपने ना ही ऑफर की ना ही पैसे दिए, तो वो अनपेड सेलर बन जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगेन सपोज कर लो कि 3000 की ही डील हुई थी, अगर आपने उसको ₹3000 पूरे का पूरा नहीं दिया या ₹1 भी कम दिया है और क्रेडिट की टाइम लिमिट जो भी थी वो पूरा हो गया है, तो ही विल बिकम एन अनपेड सेलर। बट अगेन, जब तक क्रेडिट की टाइम था तब तक वो अनपेड सेलर नहीं होगा। द मोमेंट दिस क्रेडिट लिमिट is finished, then if payment partially or fully not paid, then he or she is going to become an unpaid seller. Then, if the price is paid through a bill of exchange, जो हमने पढ़ा और जिसमें चेक फॉर एग्जांपल एक चीज है, आपने फॉर एग्जांपल आई एम अ बायर, मैंने कुछ चीज खरीदी
मैंने कैश नहीं दिया, मैंने उसे कहा आप ये चेक रख लें और ये आप 3 दिन बाद कैश करवा लेना, जो हम फ्यूचर डेटेड जो है पोस्ट डेटेड चेक देते हैं। 3 दिन बाद का हमने चेक दे दिया। 3 दिन तक, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, आपकी डील होगी। 3 दिन तक वो अनपेड सेलर नहीं होगा। बट 3 दिन जब गुजर गए और चेक की डेट आ गई, जब उसकी वैलिडिटी आ गई कि इस दिन मैं कैश करवा सकता हूँ, उस दिन वो बैंक जाता है और उसका चेक डिसऑनर हो जाता है। ये हमने पढ़ा था कि डिसऑनर कैसे होता है, क्या चीज़ है। अब उसका चेक डिसऑनर हो जाता है तो फिर वो अनपेड सेलर बन जाएगा, लेकिन उससे पहले नहीं बनेगा। उसने अगर थर्ड डे की बजाय फोर्थ डे जाके प्रेजेंट किया है चेक और फिर वो डिसऑनर हो गया, जब भी डिसऑनर हुआ चेक, वो अनपेड सेलर फौरन बन जाएगा। इसके अलावा जो एक कंडीशन है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी से कुछ चीज़ें उधार पे खरीदी हुई हैं, क्रेडिट पे खरीदी हैं, और क्रेडिट लिमिट सपोज कर लेते हैं कि क्रेडिट लिमिट जो है वो 15th मई तक मेरे पास क्रेडिट लिमिट है। मैंने 10th को डील की और 15 तक मैंने उसे प्रॉमिस किया कि 15 तक मैं पे कर दूंगा। नॉर्मल हालात में तो ये 5 दिन में सेलर जो है वो अनपेड सेलर के राइट्स उसको नहीं मिल सकते। बट होगा क्या, सपोज 13th ऑफ मई को मैं जो हूँ बायर हूँ, जो मेरा कोई बैंकरप्सी हो जाती है या इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो जाती है मेरे पे ऑफिशियली, तो तब ये जो सेलर है वो 15 की बजाय 13 तारीख को ही अनपेड बन जाएगा, अगर बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी वगैरह मेरे पे डिक्लेयर होती है। बट अदरवाइज जितनी मेरी लिमिट है क्रेडिट की, उतने टाइम तक अनपेड सेलर नहीं है। द मोमेंट दैट लिमिट इज क्रॉस्ड एंड पेमेंट इज नॉट मेड फुली और पार्शली, it will become the seller will become an unpaid seller. So this is something, uh, uh, this is a basic concept of how one can become an unpaid seller, and कब उसको ये laws जो हैं वो उस पे implement होते हैं. Then we have the rights of an unpaid seller against goods. मैंने आपको बताया था कि goods जो हैं, मूवेबल गुड्स जो हैं, उस पे ये अप्लाई होते हैं लॉज, ये कॉन्ट्रैक्ट सारा उस पे अप्लाई होता है। सो कब वो पहली बात तो ये है कि वो अनपेड सेलर हो गया कि नहीं हो गया। अगर वो अनपेड सेलर बन गया है, जो हमने अभी फीचर्स और चीजें डिस्कस की हैं उसकी बेस पे, तो फिर वो गुड्स पे, जो मतलब चीजें हैं जो उसने बेची हैं, उस पे उसका क्या राइट है। क्योंकि कई दफा ये होता है कि आप सेल परचेज जो कर रहे होते हो, कई दफा वो चीजें आपकी पोजेशन में ही अभी होती हैं, सिर्फ आपका जो है वो डील हो गई होती है, पैसे नहीं मिले होते, ना ही पोजीशन उधर गई होती, ओनरशिप चेंज हो गई होती है, पोजीशन चेंज नहीं हुई होती। अग्रीमेंट टू सेल में तो यूजुअली यही होता है। नाउ, राइट ऑफ पोजेशन, अब जो सेलर है, अगर वो अनपेड बन जाए, ऐसी कंडीशन में आ जाए कि वो अनपेड सेलर बन गया है, तो वो गुड्स की पोजेशन रख सकता है या नहीं रख सकता, ये हमने एक्चुअली डिटरमिन करना है। सो इफ बायर fails to pay the price within the decided time, unpaid seller has the right to keep the goods in his possession, and he can refuse to deliver the goods to the buyer until due payment is made. So क्या हुआ, सपोज ये कर रहे हैं कि मैं सेलर हूं, मैंने किसी को कोई चीजें बेचनी हैं, फ्यूचर उसके साथ अग्रीमेंट टू सेल कर लिया है कि 5 दिन के बाद वो चीजें आके आप मेरे से ले जाना, आप मुझे पैसे दे जाना। अब 5 दिन गुजर गए हैं, तो मैं अनपेड सेलर बन गया हूँ, मुझे पैसे नहीं मिले फुली या पार्शली, बट चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। सो ऐसी चीज़ों की पोजेशन जो है वो मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ, मैं अपने पास पोजेशन उनकी रख सकता हूँ, एंड आई कैन रिफ्यूज दैट पर्सन कि मैं तुम्हें इसकी पोजेशन नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे फुली पेमेंट जो है वो नहीं कर देते। सो अनपेड सेलर के ये राइट्स होते हैं, वो रिफ्यूज कर सकता है। ऑल्दो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो ओनरशिप तो चेंज हो जाती है, लेकिन पोजेशन अगर आपके पास है तो आप पोजेशन जो है उसको रिटेन कर सकते हो। नाउ, फॉलोइंग आर द कंडीशंस व्हेन राइट ऑफ पोजेशन कैन बी एक्सरसाइज्ड। ये कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें पोजेशन आप रख सकते हो। व्हाट, व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट लीगल अग्रीमेंट। अगर तो सिर्फ
नॉन सीरियस टाइप ऑफ एग्रीमेंट था, उसमें लीगल बाइंडिंग नहीं थी, तो ऑब्वियसली पोजेशन आप रख सकते हो जब भी आप अनपेड सेलर बनते हो. देन व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन कैश बेसिस बट पेमेंट इज अनपेड. जैसे मैंने आपको रिटेल स्टोर की एग्जांपल दी. इफ यू गो टू सम रिटेल स्टोर, यू बाय सम थिंग्स, वो आपको रिसीट बना देते हैं. एंड इफ यू से आई डोंट हैव द मनी, दे हैव ऑल द राइट, ऑल्दो एक दफा आपकी डील हो चुकी है कि उसने रिसीट बना के आपको दे दी है, आपने ऑफर की मैंने ये चीजें खरीदनी है, उसने एक्सेप्ट कर ली. अब जब आप पेमेंट करने लगे हो, तो आपने कहा पेमेंट तो मेरे पास नहीं है, फुली या पार्शली कुछ मिसिंग है. तो उसके पास ये राइट होता है ना कि वो चीजें अपने पास रख लेता है कि ठीक है आप पेमेंट ले आए फिर आप ले जाइएगा. तो पोजेशन वो अपने पास रख सकता है. तो सेकंड पॉइंट इज व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन कैश बेसिस बट पेमेंट इज अनपेड. Now, what is third thing? The third is when the goods have been sold on credit basis and the term of credit has expired. ये भी हमने फीचर में पढ़ा कि अगर मेरे पास ही मेरी पोजीशन में ही चीजें हैं, डील मैंने कर ली है एज अ सेलर, बायर ने मुझे कहा 5 डेज के बाद आपको मिल जाएंगी, पेमेंट मिल जाएगी. अब 5 दिन गुजर गए, मुझे पेमेंट नहीं मिली, तो I can keep the possession of those things because now I have become an unpaid seller and the possession of those things is already with me already, so I can keep that possession. Then when the buyer becomes bankrupt even within the decided period, even within the credit limit period, अगर उसने 10 दिन का आपसे वादा किया था 10 दिन बाद आपको पैसे दे के अपनी चीजें उठा के ले जाएगा, तो अब क्या होगा अगर 7th डे पे वो बायर जो है वो बैंकरप्ट हो गया है या कोई ऐसा इशू उसको आ गया लीगल, तो आप उन चीजों की पोजीशन अपने पास रख सकते हो. Now, following are the conditions when right of possession is terminated. When the unpaid seller cannot keep the possession of the goods. जिसमें what is the first thing? When seller delivers the goods to the buyer without having any legal right on the goods. पहली बात यह है कि अगर उसने चीजें डिलीवरी कर दी हैं उसको, तो फिर उसने राइट लूज कर दिया है पोजेशन का. आपने फॉर एग्जांपल टेलीविजन आप खरीदने गए और आपने पार्शियल पेमेंट की और आपने कहा कि बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो कल आपको मिल जाएगी, टेलीविजन आप घर ले आए, दैट मीन्स डिलीवर हो गया आपको. दूसरे दिन आपने पेमेंट नहीं की, वो अनपेड सेलर बन गया. बट अब वो घर आके आपका टीवी नहीं छीन सकता, वो पोजेशन उसकी नहीं ले सकता. अब उसके पास ऑप्शन क्या है, वो आपको सू कर देगा कि मुझे इतने पैसे इसने अभी देने हैं इस बंदे ने, बट वो पोजेशन उसकी नहीं रख सकता. हाँ, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये लिखा होता, फॉर एग्जांपल आप इंस्टॉलमेंट पे टेलीविजन खरीदते हो कहीं से, और आप इंस्टॉलमेंट्स उसको पे करनी है कि आपने 10 मंथ्स के लिए उसको 10,000 रुपीज देना है. फिर उसने हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवा लिया हो कि जब भी आप इंस्टॉलमेंट, जिस महीने भी आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल 5th ऑफ एवरी मंथ, उससे अगर लेट किया तो हो सकता है कि आपके पास से पोजीशन इन चीज़ों की ले ली जाए. अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है तो फिर वो आके पोजीशन ले सकता है, अदरवाइज उसका पोजीशन का राइट खत्म हो जाता है. देन सिंपली वही बात, व्हेन द बायर हैज ऑब्टेन्ड द पोजीशन लॉफुली, जब उसने पोजेशन लॉफुली आपसे ऑब्टेन कर ली है, तो तब भी आप उसको पोजेशन के लिए, आप पोजेशन का राइट आपका लूज हो जाता है. हाँ, आप उसको अपने डैमेजेस के लिए और अपनी पेमेंट के लिए सू कर सकते हो. सेलर ये कह सकता है मेरे इतने पैसे इसने देने हैं, लेकिन वो चीजों पे उसका राइट खत्म हो जाता है. नाउ दिस इज थर्ड वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हेन द बायर फर्दर सेल्स द गुड्स. फॉर एग्जांपल एक सेलर है और सेलर के साथ एक बायर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10 दिन बाद पैसे दे के अपनी चीज़ें उठा के ले जाऊंगा. तो इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और 10 दिन की क्रेडिट लिमिट होगी. ऑल्दो अब चीज़ें सेलर के पास ही हैं, इसकी पोजेशन में है फिलहाल, अभी इसने बी ने रिसीव नहीं की बायर ने, बट बायर बिकॉज B2B में डील कर रहा है, बायर जो है वो खुद भी बिजनेस को ही डील कर रहा है. तो अब हुआ क्या कि बायर ने आगे एक थर्ड कस्टमर को अपने ये चीज़ें बेचने का वादा कर लिया है, और इस करने ये वादा करने से पहले बी ने
बायर ने सेलर को पूछा कि मैं इसको फर्दर सेल करने लगा हूं, ऑल्दो अभी पैसे नहीं दिए। अभी बायर ने सेलर को पैसे नहीं दिए, लेकिन अभी क्रेडिट लिमिट फॉर एग्जांपल चल रही है। पोजीशन किसके पास है? सेलर के पास। लेकिन बायर ने इससे पूछ के आगे सेल अगर कर दी हो चीज, अब इसी के पास पड़ा हुआ सब कुछ, बट इसने इसके साथ भी प्रॉमिस कर लिया, बी ने सी के साथ भी प्रॉमिस कर लिया कि मैं तुम्हें ये चीजें इतनी बेच रहा हूं, और इसके नोटिस में भी था कि ये फर्दर आगे रीसेल कर रहा है चीजें। तो अब अगर इसके पास पोजेशन है भी तो ये पोजेशन क्लेम नहीं कर सकता। इस केस में भी ये पोजेशन के राइट्स को लूज कर जाता है। बिकॉज हुआ क्या, इसकी इसकी वजह से इसको नोटिस दे के उसने एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ये नहीं हो सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब टूट जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट का जो भी डिसीजन होगा वो बाद में होता रहेगा। अब ये पोजेशन जो है उसका राइट इसको सेलर को नहीं है। इस सूरत में क्या है, व्हेन बायर फर्दर सेल्स द गुड्स, तो बायर ने फर्दर वो अग्रीमेंट टू सेल कर लिया इसके साथ, तो तब भी जो पोजेशन है उसका राइट इसका खत्म हो जाएगा। Now, the second type of rights are the right of stoppage of goods in transit. पहली बात, what is the meaning of transit? I know most of you are aware of it, but still we are going to repeat it. Carrying of things from one place to another place. Carrying of things from one place to the other place. Now, वैसे तो जनरली लगता है कि कैरेज में कितना टाइम लगता होगा या क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई चीज़ बाय रोड भेजनी है फ्रॉम कराची टू सपोज पेशावर, और फ्रॉम वन कंट्री पाकिस्तान टू चाइना, और फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान, एंड बाय रोड या बाय शिप या बाय सी आ रही है, जिस तरह भी, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, इट्स गोइंग टू टेक सम डेज, मे बी सम वीक्स, मे बी मंथ्स। सो वो जो ऐसा टाइम है जिसमें ना वो सेलर के पास है ना वो बायर के पास है गुड्स, ऐसे में जो राइट्स हैं वो कैसे एक्ट करेंगे, लॉ उसको कैसे डिसाइड करेगा। सो राइट्स ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, कब वो स्टॉप कर सकता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि वो पोजेशन ले सकता है कि नहीं, कब वो स्टॉप कर सकता है ड्यूरिंग द ट्रांजिट। कब कब उसके राइट्स बनते हैं अनपेड सेलर के? व्हेन द बायर फेल्स टू पे द प्राइस within the decided period, unpaid seller has the right to stop the goods in transit. प्लीज दोबारा ये सुन लें, ट्रांजिट का मतलब ये है कि सेलर से वो चीज डिलीवर होने के लिए निकल चुकी है, बायर तक अभी पहुंची नहीं है। So the time from when the seller has dispatched something to before the time the buyer has received it lawfully is the time of transit. अब क्या है, किन किन कंडीशंस में, following are the conditions of stoppage of goods and seller can stop the goods to deliver to the buyer। किन कंडीशंस में वो स्टॉप कर सकता है इन गुड्स को? फर्स्ट, when the seller must be unpaid, जब सेलर है वो अनपेड हो जाए और उसको पैसे ना मिले, तो तब वो इसको कर सकता है एक्सरसाइज अपने राइट को, कि वो ट्रांजिट के दरमियान उसको स्टॉप कर सकता है। when buyer becomes bankrupt, ऑल्दो भी क्रेडिट टर्म चल रही होगी, बट बायर जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। रीजन क्या हुआ? कोई भी रीजन हुआ, लेकिन अब आपको ये पता है कि उसके एसेट्स जो हैं वो उसकी लायबिलिटी से कम हो गए हैं, तो अब आप ड्यूरिंग द ट्रांजिट उन चीजों को स्टॉप कर सकते हो, रोक सकते हो। थर्ड कंडीशन इज व्हेन द गुड्स आर नॉट इन द पोजेशन ऑफ द सेलर but have not reached buyer's possession, such as goods are in transit with the carrier। अगेन मैंने आपको बताया कि अभी तक वो डिलीवर नहीं हुए बायर को, अभी ट्रांजिट में ही है और वो अनपेड सेलर बन जाता है, तो वो ट्रांजिट में गुड्स को रोक सकता है। सो इन कंडीशंस में जो अनपेड सेलर है वो ट्रांजिट के दरमियान भी जो गुड्स हैं
उनको वो स्टॉप करवा सकता है, रोक सकता है। देन राइट टू रीसेल। देखो, अब चीजें उसके पास पड़ी हुई हैं, उसने तो बेचने के लिए रखी हुई है ना, और वो अनपेड सेलर बन गया, तो वो क्या रीसेल कर सकता है या नहीं कर सकता? सो if the buyer fails to pay the price within the decided time, the unpaid seller has the right to resell the goods. मतलब उसके अलावा किसी और को सेल कर सकता है कि नहीं कर सकता? So following are the conditions in which seller can resell the goods. Now, what are those conditions? First of all, when buyer fails to pay the price of the goods. Simple. उसने पैसे नहीं पे किए, वो उसको पोजेशन में तो रख ही सकता है, लेकिन रीसेल भी कर सकता है। सेकंड, व्हेन बायर बिकम्स बैंकरप्ट, अगेन वही कंडीशन, आपके पास ये भी चीजें पड़ी हैं और बायर बैंकरप्ट हो गया, आप उनको रीसेल कर सकते हो, उस बायर को नहीं, यू कैन सेल इट टू डिफरेंट बायर्स। थर्ड कंडीशन क्या है? when the goods are fresh in their nature or they have a perishable nature. For example, vegetables, crops, maybe eggs, maybe bread, anything which has a very short shelf life or a perishable good, और अनपेड सेलर वो बन जाता है, तो फिर वो उसको फौरन सेल कर सकता है, बिकॉज वो रखी नहीं जा सकती कि उसको उसकी वैल्यू जो है वो लूज हो जाएगी। सो इसलिए पेरिशेबल गुड्स हों तो तब भी जो है उनको फौरन रीसेल किया जा सकता है, द मोमेंट यू बिकम एन अनपेड सेलर। What is the fourth condition? When unpaid seller has expressly reserved this right of resale in the contract. ये भी एक तरीका होता है कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो कि आपका बायर जो है वो आपको शायद पूरी पेमेंट एंड टाइमली पेमेंट नहीं करेगा, तो व्हाट यू डू इज, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखवा लेते हैं या वर्बली उसको बता देते हैं कि अगर मुझे टाइमली पैसे नहीं मिले तो मैं इनको किसी और बायर को सेल कर दूंगा, सो यू कैन नॉट देन कंप्लेन। सो आप कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखवा लेते हैं कि अगर टाइमली पेमेंट्स ना हुई तो इसको दोबारा रीसेल कर दिया जाएगा। व्हाट इज द फिफ्थ कंडीशन? आफ्टर रिसीविंग द नोटिस फ्रॉम द सेलर, बायर डज नॉट पे द प्राइस, सेलर कैन रीसेल द गुड्स। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जिसका पोजेशन आपके पास है और बायर को आप बताते हैं कि आपने पैसे पेमेंट नहीं किए और वो रीजनेबल टाइम में आपको पेमेंट नहीं करता, इवन आपके नोटिस देने पे भी, तो तब भी आप उसको रीसेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप कह रहे होंगे बड़ा सिमिलर सी सिचुएशंस हैं, बट ऑल दीज सिचुएशंस आर पॉसिबल। अब लास्ट वाली सिचुएशन में ज्यादातर इशू क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी गोल्ड शॉप पे जाते हो एंड आप उसको एक अपने मर्जी के डिजाइन की ज्वेलरी का ऑर्डर दे आते हो, you pay them 50% and you promise them that whenever they are going to whenever we are going to come to pick up our jewelry, we are going to give you the rest of the 50%। और आप 50% पैसे दे के और उसके बाद 50% पैसे आप नहीं दे रहे, वो क्या करेगा सेलर? वो आपको नोटिस देगा कि आपकी आज पेमेंट ड्यू थी और आपका जो भी ऑर्डर है दैट इज रेडी, आप उसको पैसे नहीं देते, तो फिर उसके पास राइट है कि वो उसको किसी और कस्टमर को रीसेल कर सकता है, और उसका जो भी लॉस होगा, जो भी गेन होगा, वो फिर उस हिसाब से एडजस्ट होगा कि ऑब्वियसली वो बायर को ही नुकसान होगा, और अगर फायदा होगा तो सिर्फ सेलर को ही फायदा होगा, फायदा बायर नहीं ले सकता। सो इस सिचुएशन में, इन सारी सिचुएशन में जो अनपेड सेलर होता है उसके पास राइट टू रीसेल होता है। नाउ, unpaid seller is a person who has not been paid. He has the right to resell the goods, stoppage of goods, or keep them in his possession, as well as he also can take legal action against buyer because he has been awarded with these rights by the law. So the idea is, if a seller has been promised the money or the price of some goods and is not paid, वो अनपेड सेलर बन जाता है। सो लेट्स जस्ट रिपीट इट। अनपेड सेलर, seller who sells thing to a buyer if he or she has not been paid fully or partially,
ऑन द ड्यू डेट और ड्यू टाइम और अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस, वो अनपेड सेलर बन जाता है. Unpaid seller means a person who sells the goods for a price but the price is not being paid. बट अगर बायर ने वो प्राइस ऑफर की हो और सेलर ने उसको उस टाइम रिफ्यूज कर दिया हो, तो फिर वो अनपेड सेलर नहीं बनता. देन वी टॉक्ड अबाउट दीज फीचर्स. सेलर मस्ट सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड मस्ट बी अनपेड. अनपेड किस सिचुएशन में हो? या तो वो पार्शली अनपेड हो या वो फुली अनपेड हो. कुछ पैसे नहीं मिले या सारे पैसे अभी उसको नहीं मिले एज पर द एक्सपेक्टेड डेट और डिसाइडेड डेट, तो वो अनपेड सेलर बन जाएगा. Then the decided period has expired and the price has not been paid. ये किस सूरत में है? जब हम अग्रीमेंट टू सेल करते हैं और हम कहते हैं आपको 5 या 10 डेज के बाद आपको ये प्राइस इसकी मिल जाएगी, और 5-10 जो भी डिसाइडेड पीरियड है वो टाइम गुजर जाता है और पैसे नहीं मिलते, अनपेड सेलर बन जाता है. एंड देन अगर आप कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक उसको देते हो कि इस चेक से तुम अपनी पेमेंट जो है वो रिकवर कर लो, और वो चेक जब प्रेजेंट किया जाता है ऑन ड्यू डेट टू द बैंक एंड बैंक से वो डिसऑनर हो जाता है, कैश नहीं होता चेक, तो इसका मतलब है कि वो फिर अनपेड सेलर बन गया. देन वी टॉक्ड अबाउट द राइट ऑफ द पोजेशन, ये कब वो पोजेशन रख सकता है. तो हमने कहा कि ये कंडीशंस हैं व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट लीगल एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो, वैसे एग्रीमेंट हुआ हो तो ऑब्वियसली वो पोजेशन रख सकता है. व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन कैश बेसिस, जब इमीडिएटली कैश एक्सपेक्टेड था बट कैश मिला नहीं. व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड. आपने क्रेडिट बेसिस पे उससे गुड्स ली थी, लेकिन क्रेडिट बेसिस की जो टर्म्स थी वो एक्सपायर हो गई हैं, जो भी टाइम था जो भी डेट थी वो एक्सपायर हो गई है, तो अनपेड सेलर बन जाएगा. एंड व्हेन द बायर बिकम्स बैंकरप्ट इवन विद इन द डिसाइडेड पीरियड, अगर बायर जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है तो फिर भी आप जो है उसकी पोजेशन चीजों की अपने पास रख सकते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट कि किन कंडीशंस में जो द राइट ऑफ पोजेशन इज टर्मिनेटेड और लॉस्ट, उसमें क्या है? when sellers delivers the goods to buyer without having any legal right on goods, तो जब डिलीवरी कंप्लीट हो जाए, उसके पास गुड्स चली जाएं बायर के पास, तो उस सिचुएशन में राइट टू रीसेल जो है वो राइट टू पोजेशन जो है वो नहीं रख सकता. when the buyer has obtained possession lawfully, जब बायर के पास वो चीजें पहुंच गई हैं एक दफा और उसने रिसीव कर ली हैं, तो तब भी जो है वो दोबारा उससे पोजेशन नहीं ले सकता. एंड व्हेन बायर फर्दर सेल्स द गुड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर बायर एंड सेलर का एक एग्रीमेंट होता है एंड बायर सेलर से पूछ के आगे उसकी फर्दर रीसेल कर देता है, ऑल्दो थिंग्स आर इन सेलर्स पोजेशन, तो स्टिल अब सेलर जो है उसकी पोजेशन नहीं रख सकता, उसको बायर को देनी पड़ेंगे, बिकॉज बायर ने आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है इसको नोटिस दे के. इसको नोटिस दिया, इसको रीसेल किया, तो अब इस सूरत में चाहे इसके पास पोजेशन है भी, ही कैन नॉट कीप द पोजेशन ऑफ दोज गुड्स. देन वी टॉक्ड अबाउट कि किन किन कंडीशंस में अनपेड सेलर जो है वो स्टॉप कर सकता है ड्यूरिंग द ट्रांजिट. तो हमने कहा व्हेन द सेलर मस्ट बी अनपेड, जो उसको पैसे नहीं मिले और अभी भी चीज़ें जो हैं वो कैरेज में हैं, ट्रांजिट में हैं, तो वो रोक सकता है. व्हेन द बायर बिकम्स बैंकरप्ट, अब बायर जो है अगर बैंकरप्ट हो जाता है और चीज़ें अभी ट्रांजिट में हैं, तो तब भी वो चीज़ों को रोक सकता है. व्हेन द गुड्स आर नॉट इन पोजेशन ऑफ द सेलर बट हैव नॉट रीच्ड बायर्स पोजेशन, सच एज गुड्स आर इन द ट्रांजिट विद द कैरियर. तो इसमें भी होता है कि वो चीज़ें जो है वो रोक सकता है. नाउ इफ अ बायर फेल्स टू पे within the decided time, the unpaid seller has the right to resell the goods. कब वो चीजें बेच सकता है किसी और सेलर को, और कौन सी कंडीशंस है? when buyer fails to pay the price of the goods, जब उसको पैसे नहीं मिले वो रीसेल कर सकता है. when the buyer becomes bankrupt, again assets are less than the liabilities, अब वो आपको पता है कि पेमेंट नहीं कर सकता, तो इस सेलर को इंस्टेड ऑफ वेटिंग he can make another sale to a different buyer. एंड व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर और फ्रेश इन देयर नेचर, और उनका ख़राब होने के चांसेस, उनके स्टेल होने के चांसेस आर हाई, तो तब वो उसको सेल कर सकता है. एंड व्हेन अनपेड सेलर हैज एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट्स ऑफ रीसेल इन द कॉन्ट्रैक्ट, पहले कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही उसने
रिटर्न में या वर्बली आपको बता दिया था कि अगर पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, इफ आई विल बिकम एन अनपेड सेलर, आई विल मेक अनदर सेल विदाउट इवन आस्किंग यू, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हों. एंड देन आफ्टर रिसीविंग द नोटिस फ्रॉम द सेलर, बायर डज नॉट पे द प्राइस, सेलर कैन रीसेल द गुड्स. अगर सेलर ने बायर को बताया कि आप पेमेंट नहीं कर रहे मुझे टाइमली, और बायर ने फिर भी उसको पेमेंट अभी नहीं की, तो फिर भी वो रीसेल कर सकता है. And lastly, we concluded that unpaid seller is a person who has not been paid the price, and he has the right to resale of the goods in certain conditions, stoppage of goods in a transit in certain conditions, and keep the possession of those goods in a certain conditions, जो भी अभी हमने पढ़ी और जो allowed हैं. As well as he can also take legal action against the buyer because he has been awarded with these rights by the law. तो अगर जो लॉस हो या जो पेमेंट रिसीव ना हुई हो, उनके अगेंस्ट बायर को जो है वो सू भी किया जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक ऑफ अनपेड सेलर. तो आई होप आप इसको थोड़ा सा गौर से सुनेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. बट स्टिल इफ यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच.